एनी आइडिया कितने स्टूडेंट्स अभी इस मीटिंग से अटैच्ड हैं? Sir, it's 284. Sir, 284 students are there. Oh, fantastic. Thank you. Thank you very much. This is a wonderful, wonderful, wonderful opportunity. And Vedai, are you the one who will be coordinating? No, sir. It will be Satyajit. Okay. So Satyajit, please let me know if there are any questions that is coming, so I can take it now as well, or maybe at the end of the session. So that's how we will do this. Or before I start, I just like to say thank you to Government College of Engineering, Aurangabad, and the PT Club students. My first and foremost, with big respect to Dr. P.B. Mrunal. Thank you very much, sir. I know you are not here, but thank you for your supervision, guidance, and the care that you've been taking care of there. And also the Dean of Student Activities, Dr. U.J. Khalalkar. So thank you very much again for this wonderful opportunity. And we got here Satyajit and Chetan, and obviously I'm interacting with Vedai. Thank you very much. Without your efforts, we won't be having this, and we can start from here. So thank you once again. So the topic for today's discussion is, luckily we are not having any slides. So PowerPoint is something that we won't do today. We will just talk, listen, discuss, and this is going to be a very, very interactive session. Okay, so Satyajit, if they're typing anything, will I get to see what they're typing? The chat? Are you able to see that? What chats they are doing? Yes, sir. But you have to you should go there. View option is there on top of the chat, right? Okay. जो ऊपर व्यू ऑप्शन है उसमें पैनल्स है ना, व्यू ऑप्शन, व्यू ऊपर फाइल एडिट शेयर व्यू ऑडियो टॉप पे राइट. ओके. पैनल्स ऑप्शन है, उसमें मैनेज पैनल्स करके अवेलेबल पैनल्स में Q&A एंड पार्टिसिपेंट्स का भी दिखा रहा होगा. अवेलेबल पैनल्स में आपका सिर्फ पार्टिसिपेंट दिखा रहा होगा. yes. तो उसको क्लिक करने के बाद ऐड ऑप्शन चालू हो जाएगा. ऐड ऑप्शन तो ऐड करके ओके क्लिक कर. Okay, beautiful. Thank you. All right, thank you very much. Okay, let me just have a quick discussion with all the participants. I know it's a bit late, but we can start. So may I know the different towns, cities, different places where you're coming from? Just type the name, like say Aurangabad, Satara, Pune, whatever. I just want to get a feel. Okay. So okay, Parbhani, Jalgaon, Chandrapur, Vijayawada, Aurangabad. Very nice, fantastic. Thank you. That's amazing. Thank you very much. Looks like the whole Maharashtra is here. Very nice. Thank you. Thank you very much. Okay, my last question before I start. So thank you very much. I'm just seeing the different things. My last question. Okay, in one word or two words, just tell me what are your professional goals. What are your goals after you have completed your education? So maybe going to the energetic way. Okay. All right. So you want to be officer, IIT, okay, IES, developer, IAS. Wow, startup, IPS, UPSC. Fantastic. This is amazing. What else? Army, businessman, business developer, IES, startup. Good one. I must tell you this, guys, this batch is very enterprising. I'm seeing more and more entrepreneurs and startup. So I welcome you all. And once again, this is the place that we have to be. And we are talking post-corona. So the worst is already over. हमारा बुरा टाइम, गलत टाइम जा चुका है. So now it's time for us to focus. Okay. We are talking about personality development. What is personality? See, the personality is a combination. It's a group. It's an assimilation of different qualities. Okay. Somebody is good at writing. Somebody is good at speaking. Somebody makes a nice food. Somebody is very good with the studies. Somebody is a very disciplined person. And that same person will behave badly. Same person is driving car nicely. If we join all these things in a one person, the characteristics of all these qualities is known as personality.
Personality development is very, very important for your personal life, for your professional life, for your relationships. Okay? And मैं आपको बता सकता हूँ, the people with very strong personality, the people जिनकी पॉजिटिविटी उनके लाइफ के अंदर भरी हुई है, वो बहुत ऊपर तक जाते हैं. क्यों? मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ और एक बैड न्यूज. गुड न्यूज ये है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे. दिस इज अ गुड न्यूज, वी ऑल नो दिस. बैड न्यूज क्या है पता है आपको? 9 times out of 10, 9 times out of 10 things won't work as per your plan. 10 में से 9 बार आप चीजें कुछ भी करोगे आपके काम में नहीं आने वाली. यू विल फील लॉस्ट, यू विल फील डिस्करेज्ड. ओके, सो व्हाट टू डू? आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखना पड़ेगी. ठीक है? ऑलराइट, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं. सी, पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये आज का लेक्चर आपको जिंदगी भर याद आने वाला है. 3 aspects of your life will be tested in personality. Okay, number 1, and I would say the most important thing is principle, values. आपने देखा होगा ना, बचपन में जब आप बड़े हो रहे होगे तब आपको आपके मम्मी या फादर बोलते होंगे, बेटा चोरी करना बुरी बात है. ओके, you just keep on listening to this. अगर हमको किसी दिन हमने स्कूल से एक रबर इरेजर चोरी करके लेकर आ गए या हमने किसी की पेंसिल चोरी करके लेकर आ गए तो उस दिन हमको डांट पड़ती थी, बोले जाके आप वापस करके आओ. हमें बताया जाता था कि चोरी करना बुरी बात है. राइट? सो दिस आर वैल्यूज. और ये वैल्यूज धीरे धीरे करके हमारी पर्सनालिटी में आती जाती है. बचपन में हमें बहुत सारे वैल्यूज सीखने को मिली होगी. चोरी करना बुरी बात है, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, बड़ों की इज्जत करो, एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग, हमेशा जल्दी सोना चाहिए. whatever, these are some of the things that keep on coming to you again and again and again. Okay, now I tell you very small story. ये स्टोरी है टाइटैनिक की. प्रिंसिपल कितने इंपॉर्टेंट होते और कितने जरूरी होते मैं इसके आपको बताना चाहूंगा. टाइटैनिक आपको पता होगा 1911 में बहुत बड़ा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए ये डूब नहीं सकता. द मोस्ट सेफेस्ट थिंग ऑन अर्थ. क्या हुआ? वो डूब गया. लेकिन उस समय एक चीज ऐसी हुई थी जो अभी तक सभी को पता है. आपको पता है कि जिस समय टाइटैनिक को जोर से धक्का लगा था और पता लगा था कि अभी डूबने वाला है, उस समय सबसे पहले इंजीनियर्स को पता लग गया था कि दिस शिप इज गोइंग टू सिंक. आपको जान के आश्चर्य होगा, उस शिप के ऊपर जितने भी इंजीनियर्स थे एक भी बच नहीं पाया. सब के सब मर गए. यू नो व्हाई? सभी इंजीनियर्स ने वहां कसम खाई थी कि जितना हो सके, जितना हम कोशिश कर सके, हम इस शिप को अप एंड रनिंग करेंगे, इंजन को अप एंड रनिंग रखेंगे. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग शिप से बाहर जा सके. और वो पॉसिबल तभी हो सकता था when the ship is up and running. And when this is possible, it's only possible when the engineers are there. इंजीनियर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं करी और उन्होंने सब के सब लोगों को जो बाहर निकाल सकते थे निकाला. प्रिंसिपल. आपकी पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रिंसिपल. You all are going to be engineer. You all are going to be learned person. You all will have too much knowledge. The point is, are you having principles? Are you the one who will stay there and help others? Now you might be thinking कि सर मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ. Money will come. Money will come to you. That's not a problem. The only problem is the principles coming to you or not. If you choose pleasures over principles, अगर आप जिंदगी में आराम को चुनोगे ना कि आदर्शों को, आप दोनों से हाथ खो बैठोगे. आपकी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे, हमारे
सभी लोगों के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने खुद से ऑनेस्ट रहेंगे। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, it is not going to help. Okay, I don't want to be like a Dadaji here, but I want to tell you, personality is nothing but principle at the best. Okay, that's number one. I want to tell you one more small story. Wonderful story, wonderful story. आपको मालूम है, मैं लेट मी आस्क, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके लिए लोग मरते हैं काम करने के लिए? आप चैटिंग में लिख सकते हैं क्या? एप्पल, 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 टेस्ला, स्पेसएक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, 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 एप्पल, एप्पल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको मालूम है, दुनिया में सबसे पहली वाली कंपनी है जिसके लिए लोग मरते काम करने के लिए, और ये एक भी गोल्डमैन सैक्स भी लिखा किसने? वंडरफुल। किसने लिखा गोल्डमैन सैक्स? क्या नाम है उसका? Who has written Goldman Sachs? Sir, Akash Sridharan. Okay. See, for some reason, I'm just saying that it's popping up, but I don't see what they are doing. Akash, I see that you have a very good future because you are telling me something that not many people will tell. I will talk to you later sometime if God permits, but I think, okay, the question is, मैं पूरा इंग्लिश में बोलूं चलेगा सर कि हिंदी में बोलना? कैसे कंफर्टेबल है यहाँ पे सब लोग? You prefer English, Hindi, mix? कैसा? 80-20, 20-80? Sir, mix चलेगा. Mix चलेगा ना? Fantastic. Yes. Okay. Okay, mix. Okay. आपको बता दूं, दुनिया में गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट ये बहुत ही साउट आफ्टर कंपनी नहीं है. World's number one company that people really want to work is McKinsey and Company. आला काय? तुम्हाला माहिती आहे लक्षात? Sorry, I'm just learning Marathi in between. So, McKinsey and Company. How many of you heard that name? Anyone? Okay, नहीं. तो अभी आप जाना McKinsey and Company टाइप करना और पता लगेगा कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी कौन सी है. आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कौन गाइड करता है, कौन उनको सजेशंस देता है कि ब्रिज यहाँ से नहीं वहां से बनानी है, उनके फाइनेंस को कैसे मैनेज करा जाता है, उनके स्टैटिस्टिक्स को कैसे मैनेज करा जाता है. दे कंसल्ट. एंड कौन कंसल्ट करता है उनको? मैकेंजी एंड कंपनी. ओके, गो एंड वॉच इट. तो मैकेंजी एंड कंपनी के जो सीईओ थे उनका नाम क्या था? रजत गुप्ता. रजत गुप्ता इज ए इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक थे. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मैकेंजी एंड कंपनी के वो सीईओ थे. यस, दैट्स नंबर वन. दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी कौन सी है? यानी कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गूगल नहीं है मेरे भाई, सिद्धि तंगुले नहीं. बैंक ऑफ अमेरिका भी नहीं है, सिटी बैंक भी नहीं है, बर्कशायर हाथवे भी नहीं है, जेपी मॉर्गन भी नहीं है, मॉर्गन स्टैनली भी नहीं है. जो आकाश ने बोला था वो है गोल्डमैन सैक्स. और यही रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के वर्किंग कमेटी के चेयरमैन थे. नाउ कैन यू इमेजिन, one person of Indian origin is leading the world's best two company in a two different direction. Yes, लेकिन इन्होंने क्या करा? एक छोटी सी गलती कर दी. पता उन्होंने क्या किया? इनसाइडर ट्रेडिंग. उन्होंने एक छोटा सा काम करा, गलत काम करा, उनका पैर फिसल गया and he was caught and he was punished. All his reputation came down. जब इनका ट्रायल हो रहा था, बिल गेट्स ने अमेरिकन चीफ जस्टिस को लिखा था कि प्लीज लीव रजत गुप्ता, ही हैज डन सो मेनी थिंग्स. नहीं छोड़ा. बिल क्लिंटन ने लिखा, नहीं छोड़ा. बिल गेट्स ने लिखा था कि प्लीज लीव हिम, नहीं छोड़ा. प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ओके, तो आप जो भी हो, जैसे भी हो, जितना भी है, शुरू करो. चलो रिपीट, इस जिंदगी में जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, जहां मिले, शुरू करो. एंड यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर वर्किंग
just like a wonderful opportunity for you. And that is why I can tell you one thing, free. आपने कभी सोचा होगा कि कोई फेमस गाना ऐसा रहता है जो हम गाते हैं और हमें बिल्कुल याद हो जाता है? यस, अगर कोई गाना आपने 5 साल पहले भी सुना होगा और उसके बाद में अभी गाना बंद कर दिया है, 5 साल तक के नहीं गाया, लेकिन अचानक से अगर वो गाना कहीं शुरू होने लगता है तो आप बिल्कुल वैसे के वैसे गाने लग जाते हो। इज इट यस? जैसे जिस समय मैं बड़ा हो रहा था उस समय आई थी डीडीएलजे और उस समय गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम। लुक, माय वॉइस इज नॉट एट ऑल गुड. I still remember that song. Why and how? You must be thinking, right? अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बोलूं तो हम देखते थे कि लोग जगह जगह चिपका के रखते थे, हर दिन सुबह उठ को देखते रहते थे, उसको देखते रहते थे. कुछ लोग तो वॉशरूम में जाके जस्ट कमोड के सामने चिपका देते थे. कभी आपने ऐसा फिल्मों गानों के लिए करा है? नो, नेवर, नॉट रिक्वायर्ड. व्हाई? देयर इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट आई कॉल एज फ्री. F-R-E-E. F-R-E-E. The first is F is for freedom. तो आज के बाद आपकी पर्सनालिटी में डाल दो, आज के बाद आप जो भी करोगे तो उसमें F रहना चाहिए. F is for freedom. खुले विचार से अच्छे खुले मन से करना है. फ्री. F-R-E-E. So the first one is F is free. Freedom. Second is repetitive. कोई भी चीज अगर करना है उसको आपको रिपीटेटिवली करना पड़ेगा, तभी मास्टरी करोगे. 8000 आवर्स अगर आप किसी बिजनेस में डाल देते हो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो. गाने के अंदर भी आपको क्या करना है? फ्रीडम. आपको कोई यहाँ पे बंदूक रखता नहीं है बोले कि आपको गाना गाना पड़ेगा. नो, यू आर हैप्पी, यू स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग. यस और नो? दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग इट. इट्स रिपीटेटिव. एक के बाद एक हम सुनते जाते करते जाते. F-R-E. E is for entertainment. कोई भी चीज के अंदर एंटरटेनमेंट लाने की कोशिश करिए, उसको मजा लेके करिए. इफ इट यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर हैप्पी डूइंग इट, यू स्टे विथ इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. F-R-E-E. एवरीवन. आप वही करिए जो आप हमेशा करते हो, सभी के साथ करना है. तो अगर कोई चीज में आप फ्रीडम रख रहे हो, उसको रिपीटेटिव कर रहे हो, उसको एंटरटेनिंग बना दिया है और सभी लोग आपके साथ में वही कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू विल मास्टर इन दैट फील्ड. अब होता क्या है कि हम जबरदस्ती मन मार के पढ़ते हैं, फ्रीडम चला गया. रिपीटेटिव करते ना, हम 1 या 2 बार पढ़ते लगता है कि हमारा हो गया, तो मास्टरी कभी आ नहीं सकती. एंटरटेनमेंट हम नहीं बना पाते, उसको इतना बोरिंग कर लेते हैं कि उसको करने की इच्छा नहीं होती है. और एवरीवन हम क्या करते हैं कि हमको पढ़ाई के समय हम खेलने वालों के साथ चले जाते हैं. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ट्राई टू मेक ए पॉइंट, वॉट एवर यू आर डूइंग, हाउ एवर यू आर डूइंग इट, मेक इट अ बिग इम्पैक्ट ऑन अदर्स. यस? F-R-E-E. फ्री. So the पर्सनालिटी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था प्रिंसिपल. सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रायोरिटीज. देखिए, प्रिंसिपल हर किसी के पास में रहेगी, आपके पास में भी रहेगी. कुछ लोग अभी आते घर से दूर आते हैं एंड दे गेट अवे फ्रॉम द पीपल, दे गेट अवे फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. आपको बिल्कुल प्रायोरिटी फिक्स रखनी है. You have to focus on your studies. You have to focus on character building. Right? मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मेरे जीवन से है. जब मैं स्कूल में था ना, तब मुझे चेस का बहुत शौक था और I was a chess champion by the way. So I was doing very well. तो फिर मेरे को कॉलेज ने बुलाया, कि स्कूल ने बुलाया कि लोग आप इतना अच्छा चेस खेलते हो तो हम आपको चेस कमेटी का प्रेसिडेंट बना देते हैं. ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू. तो अब चेस प्रेसिडेंट का काम क्या रहता था कि एक अलमारी थी, उसमें से अलमारी को खोलना है और 5 चेस बॉक्सेस को निकाल के उसको प्रॉपर जमाना है. ठीक है, लोग आएंगे, दिन भर खेलेंगे और जैसे ही शाम होती है, जब स्कूल खत्म होती है, तब यही चेस बॉक्सेस को उठा के प्रॉपर पैक करके अलमारी में रखना है. दैट्स इट. इतना ही काम था. And I was doing it because I love chess, I love to play, so I was enjoying the whole thing. एक बार क्या हुआ कि 5 चेस में से एक चेस किसी ने चोरी कर लिया. वो दिख ही नहीं रहा.
अब सब लोग मेरे से पूछने लगे चेस का। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम किसने चोरी कर लिया। बोला आपकी जिम्मेदारी थी, आप प्रेसिडेंट हो, किसने चोरी करा आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे कैसे मालूम हु हैज स्टोलन इट। और मुझे बोला गया आपको इस चेस के पैसे देना पड़ेंगे। मैं जो आपके लिए एक सेवा कर रहा हूं उसके लिए मैं पैसे दूं, जबकि मैंने चोरी नहीं करी, किसी और ने करी। तो मुझसे जबरदस्ती से पैसे लिए गए। आई वॉज नॉट हैप्पी बट आई डिड इट, आई पेड इट। और उसके बाद में मैंने बोला सॉरी आई कैन नॉट बी ए चेस प्रेसिडेंट, आई एम लीविंग दिस। ओके थैंक यू फॉर योर हेल्प सो फार, वेरी नाइस। फिर 4-5 दिन बाद मैंने क्या करा बताऊं आपको, मैंने चेस का जो एक सेट था वो चोरी कर लिया। बैड, बैड, आई नो इट्स बैड। नाउ व्हाट हैज हैपेंड एंड आई वाज वेरी हैप्पी, या आई डिड इट। उस समय मेरे को नई बाइक मिली थी, तो मैं स्कूल में लेकर आया। एक बार जब मैं स्कूल से आकर गया तो देखा कि उसका टेल लाइट टूट गया, किसी ने तोड़ दिया। आई वाज सो अपसेट। और नई की नई गाड़ी पर अगर कोई चीज टूटी हुई है तो अच्छी नहीं दिखती ना। मैं तुरंत शोरूम गया और बोला कि इसको पहले ठीक कर दीजिए आप। उन्होंने ठीक करा और मैंने पूछा कितने पैसे हुए। उन्होंने मालूम है क्या अमाउंट बोला, एग्जैक्टली वही अमाउंट बोला जितने की मैंने चोरी करी थी, 360 रुपीज। 360 रुपीज जो बेईमानी मैंने चेस चुरा के करी थी, सेम अमाउंट का मुझे मेरी बाइक का कांच फोड़ने पर मुझे पे करना पड़ा। उस दिन मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि थ्योरी ऑफ कर्मा वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट यू और अदर्स, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपकी प्रायोरिटी फिक्स रहनी चाहिए लाइफ के अंदर। उस दिन से मैंने डिसाइड करा कि अगर मेरे साथ गलत भी हो रहा है तो मैं गलत नहीं करूंगा। अब उस वजह से मुझे थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन आई वॉज वेरी वेरी हाउ टू इंप्रूव अवर पर्सनालिटी ऑफ आइज। यस, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द पॉइंट व्हाट इज नोन एज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को बता सकते हो व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज सेल्फ इमेज, व्हाट इज सेल्फ इमेज? कोई बोलेगा? सर आप जरा पढ़ के बताएंगे मुझे, अगर कोई आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं तो। वैल्यूज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, एनीथिंग एल्स? खुद की नजरों में उठना, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके। कॉन्फिडेंस, हाउ वी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवर सेल्फ, who actually are we, very nice, fantastic, thank you, I think I got the answer, thank you very much। सेल्फ इमेज क्या होता है पता है आपको? जब आप अपने आप को आईने में देखते हो ना, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो जो पर्सन आपको आईने में दिखता है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, या ना आप अपनी नजर में क्या सोचते हो, दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज सेल्फ इमेज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो। एक बताओ, जब हम अपने आप को डफर, नालायक, बेवकूफ, यूजलेस सोचते हैं तो लोग हमारी इज्जत क्यों करेंगे? अगर आप, थैंक यू, मेंटल इमेज, यस, अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं हर महीने 5,000 रुपए कमा सकता हूं मैक्सिमम, तो आपको बाहर से कोई 10,000 रुपए की सैलरी कोई क्यों देगा? क्योंकि आपकी खुद की इतनी औकात नहीं लग रही है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग इज इक्वल टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपने सुना होगा ना, कई सारे बोर्ड लगे रहते हैं, लर्न इंग्लिश इन 21 days एंड इंप्रूव योर पर्सनालिटी। बकवास है। इंग्लिश एक भाषा है, एक भाषा के ऊपर मास्टरी करके आप पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते। पर्सनालिटी इज मच मोर डीप इनसाइड, और वो कब होगा? जब आपके प्रिंसिपल्स अच्छे रहेंगे, और सेकेंडली जब आपकी प्रायोरिटीज वेरी वेरी क्लियर रहेगी। जब तक कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल ये है कि हमें हमारी खुद की नजर में ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे बताइए? आपको दो चीजें करनी है हर दिन, यूएस, हर दिन कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीजें करनी है, ट्राई करते रहना है, एक के एक बात एक्सपेरिमेंट करना है। एक बात पूछो आपसे, जब ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे जो कॉलोनीज बना रहे थे, उस समय फ्रेंच थे, जर्मन थे, पुर्तगीज थे, स्पेनिश थे, ये लोग भी जगह जगह घूमकर कॉलोनीज बना रहे थे। लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बहुत सक्सेस क्यों मिली पता है आपको? पर्सनालिटी की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स वेर एक्सप्लोरर्स, वो एक्सप्लोर करते थे, नई नई चीजें करके देखते थे। अगर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। आप यहाँ पर हो, आपने बचपन में ये चीजें करके आपने ट्राई करके यहाँ तक आए हैं, अब इसके ऊपर आप तभी जाओगे जब यहाँ कुछ नया करोगे। यू हैव टू एक्सप्लोर अ बेटर वेज टू लर्न, you have to explore better ways to study, you have to explore better ways to learn new concepts, you have to explore better way to improve your personality, you have to explore different habits, you have to explore different ways to earn money. Explore. If you cannot explore, you cannot improve. And personality development is all about exploring your internal personality so that you start to grow up and up in your life. And that is such an important and a fundamental thing. आप जब तक के एक्सप्लोर नहीं करेंगे अपने आप को, आगे नहीं बढ़ेंगे। शुरू में डर लगेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हर किसी को डर लगता है, लेकिन एक बार आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए तब अच्छा लगता है। यस और नो? हमें पहले साइकिल चलाने में कितना डर लगता था, लेकिन जिस समय हमको साइकिल चलाते आ गई, द होल वर्ल्ड ओपन्स फॉर अस। यस, इट जस्ट ओपन्स अप। आपको एक्सप्लोर करना है कि और जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल आर फेसिंग। ओके, फैंटास्टिक थिंग। सो दैट्स हाउ वी विल डू दिस। ओके, द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पर्सनालिटी इज पॉजिटिविटी। यस, पॉजिटिविटी। तो मैं आपको क्विकली समराइज करता हूं। पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ 3 P's: प्रिंसिपल, प्रायोरिटीज एंड पॉजिटिविटी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, जब हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख के लोगों को हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड मार रहे थे। पीपल आर स्केयर्ड, पीपल आर पुट इट इन द गैस चेंबर। उनको डर लगता था, क्योंकि हिटलर ही जस्ट वांट टू रूल ओवर द वर्ल्ड। उनको ज्यूइश को हर तरह से मारना था, लेकिन उस समय लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भर भर के मारा जा रहा था। उस समय एक विक्टर फ्रैंकल नाम के बंदे आए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा रहना है तो मुझे बाहर की नेगेटिविटी को मेरे अंदर नहीं आने देना पड़ेगा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसी कंसंट्रेशन कैंप में उनके पेरेंट्स मर गए, उनकी वाइफ मर गए, उनके बच्चे मर गए। वो सब कुछ कोशिश करने के बाद भी उनको बचा नहीं पाए। पर्सनालिटी के अंदर अगर जब तक आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी ना, तब तक कि आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 9 बार 10 बार में से आपको नेगेटिविटी चीज हाथ में मिलेगी, निराशा ही हाथ में आएगी और आप हर हाल में नीचे के नीचे जाते रहोगे। आपको अंदर से पॉजिटिव आवाज निकालते आना पड़ेगा। बोलते ना ऑल इज वेल, आपको अंदर से अंदर बोलना पड़ेगा कुछ नहीं होता। अगर इस बार मेरा इस कंपनी में नहीं हुआ तो और ट्राई करूंगा, और अच्छे से मेहनत करूंगा, धीरे धीरे करके मैं ऊपर उठते जाऊंगा और उसी से मुझे सक्सेस मिलेगी। कंसंट्रेशन कैंप में भी ऐसा ही हुआ, वो बाहर चले गए और बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उनका इंटरव्यू हुआ, उनका डिस्कशन हुआ, उनके ऊपर रिसर्च हुई और पता लगाने की कोशिश करी कि इन लोगों में ऐसा डिफरेंट क्या था, why these people are alive, why they are surviving। एक चीज उनमें बहुत विशेष थी जो दूसरे लोगों में नहीं थी, क्योंकि जो लोग मर रहे थे वो इनसे ज्यादा बुद्धिमान थे, इनसे ज्यादा रईस थे, इनसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले थे फिजिकल, लेकिन वो मर गए। और ये बहुत साधारण से दिखने वाले लोग जिंदा थे। इनको क्यों हुआ बताऊं मैं आपको?
इनको सिर्फ एक चीज से हुआ, इनके मन में एक बड़ा पर्पस था, एक बड़ा उद्देश्य था। लक्ष्य अलग होता है, गोल्स अलग होते हैं, पर्पस अलग होता है। आपका गोल ये हो सकता है कि आप ही मेरा लेक्चर खत्म कर ले, आपका गोल एक ये हो सकता है कि आप आज प्रॉपर डिनर करें, आपका गोल ये हो सकता है कि आप हर दिन एक्सरसाइज करें, लेकिन आपका पर्पस, इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्थ स्टार, अ बिग थिंग इन लाइफ, नॉर्थ। आप इंजीनियरिंग में आए हो, यू आर कमिंग अवे फ्रॉम द स्कूलिंग सिस्टम, आप माता पिता से भी दूर रहोगे थोड़े दिनों बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज, अंदर से एक पॉजिटिविटी मीटर चालू कर दीजिए। बाहर की कितनी भी नेगेटिविटी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू स्टार्ट जनरेटिंग पॉजिटिव थिंग्स। नहीं हुआ, पॉजिटिवली बोलो ठीक है, एक बार और ट्राई करते। हताश नहीं होना है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, राइट। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको जस्ट क्विकली समराइज करता हूँ क्योंकि टाइम भी होने वाला है। पर्सनालिटी की वजह से ही हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। पर्सनालिटी के 3 तरीके से मैंने बताया है। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, हमारे लाइफ में कुछ वैल्यूज होना चाहिए जो बचपन से सीखने को मिलती है। प्रायोरिटीज होनी चाहिए, हमें अच्छे और बुरे के अंदर से अच्छी चीजों को उठाते आना चाहिए, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया चेस का। एंड थर्ड थिंग इज पॉजिटिविटी, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती रहनी चाहिए। अगर ये 3 चीज आप कर पाते हैं, you will do amazing thing in life. So Satyajit, with that I stop and I request if there is any quick questions or whether are there any quick questions from people, so please let me know. Thank you. Hello. Yes, sir. Students, please type your questions in chat box. How to face failures? Thank you, Shoel. How can I start exploring? Thank you. Okay, what else? मैं एक बार बताऊं, फेलियर कुछ होता नहीं मेरे भाई, सही बताओ ना। आपने कोई चीज ट्राई करी और जितना रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, शायद कम रह गया, तो आपको अपनी गलतियों को सुधार कर इंप्रूव करना है। फेलियर परमानेंट कब होता है? when you stop working towards it. Okay, so there is nothing called failure. You have to keep on working so that you improve. SpaceX, आपको बताओ आज से लेके 1 हफ्ते के अंदर वो 2 बड़े बड़े रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये वही कंपनी जो बैंकक्रप्ट होने वाली थी, लास्ट मिनट पर इनको वो मिला है। How do we have a purpose? How to build a startup to a MNC? Wow. What to do to keep all the negativities away from us? To how to create enough? सर इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। How to build positive attitude? Okay. This luck is enough for success in life. How to stop negative thinking? Okay. I choose things. Right. मैं आपको एक ओवर थिंकिंग के ऊपर एक वीडियो शेयर करता हूँ। सर मैं जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको एक लिंक यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. मेरा आप सभी से, मैं चैट यहाँ कहाँ लिख सकता हूँ सर? यहाँ पे टाइप करो ना, ये एक मेरी वीडियो का। Yes, sir. Chat for everyone, to everyone. एक मैंने वीडियो लिंक भेजा है, प्लीज आप इसको देखिए। इट इज अबाउट हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग। ओके, आई वांट टू शेयर फ्यू मोर वीडियो लिंक सर, सो इफ दैट्स ओके विथ यू, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आई वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन थिंग, तो वो मैं आपको भेजना चाहता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट हाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन कुड गेन सो मच सक्सेस इन हिज लाइफ। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। Students, please, one more example, sir. Okay.
I think failure comes from self-doubt, but I think there is a fine line between self-confidence and overconfidence. How to define that line? See, for me, I have to keep on trying. आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. And I am very much impressed with Napoleon's quote. I prepare for the worst, but I hope for the best. I prepare for the worst, but I hope for the best. Okay? मेरा आपसे निवेदन है, आप ये बिल्कुल वीडियो के देखें. एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ग्रेट क्यों बना, ये वीडियो के अंदर है. अगर आप ये 8 मिनट देख लेंगे आपको मजा आ जाएगा. And if you love, please subscribe to my channel if that's okay with you guys. Fantastic. It's a quality thing there. Everybody will gain develop from that. How to improve our self-confidence? Self-confidence is a result of zero negativity in life. अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो. नेगेटिविटी क्यों आती है? If you don't do enough practice or if we are surrounded by people who are negative. कुछ लोग देखा ना, उनके यहाँ पर माइनस साइन लगा होता है. यहाँ माइनस साइन लगा होता है, मुंह से कुछ भी बोलते नेगेटिव निकलता है उनके मुंह से. उनसे दूर रहना है. आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखना है. हाउ टू अवॉइड शाइनेस? सी, आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, बाहर जाके बात करना पड़ेगी. मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल सभी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूव होना चाहिए, और वो किस तरह से हम कर सकते हैं वो भी आ सकता है. शुड वी टेक हेल्प ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स लाइक भगवत गीता? आई थिंक भगवत गीता इज अमेजिंग बुक. यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग दैट बुक एंड स्टार्ट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? मैंने ओवर थिंकिंग के ऊपर आपको पीछे भेज दिया है, आप एक बार देख सकते हैं. संचित कड़वे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार देख सकते हैं. मैं फिर से आपको एक बार लिंक शेयर कर लेता हूं. अच्छा, आपको किसी को वोकैबुलरी पढ़ानी है क्या? वोकैबुलरी के लिए मेरे पास एक अच्छी लिंक है, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो वोकैबुलरी उसके लिए बहुत बहुत अच्छी चाहिए. ये जो वाला है वोकैबुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाली लिंक. आप प्लीज इसको देखिए. 8 मिनट्स के अंदर यू विल लर्न 125 वर्ड्स. In 8 minutes you will learn 125 words. Can you believe this? 8 minutes, 125 words. Okay, please share your channel. I share my channel. कहाँ पर होगा? Okay, here. Okay, it's my official channel here. How to make decisions quickly? See, decision quickly लेने के लिए आपकी प्रायोरिटीज बहुत क्लीन चाहिए. हर्षल कटके, हर्षल, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए. आप अगर कोई नए शहर में जाते हो, आपको वहां कुछ चीज नहीं दिखती. क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है. लेकिन अगर आप कोई ऑलरेडी शहर में आपको पता है तो आप डिसीजन मेकिंग क्विक लेते हो. क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है. हाउ कैन अवॉइड नेगेटिव सराउंडिंग विथ और हर? यस. हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस? हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर? सी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं. ये एक चीज उठाते हैं, आइदर इसके अंदर सर्विस या प्रोडक्ट, उसको एम्पलीफाई करके उसको रिजल्ट देते हैं. इफ वी कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से वैल्यू ऐड करते रहना पड़ेगा. हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन? हर दिन छोटी छोटी चीजें ऐसी करिए जिसके आपको स्केरी लगता है, जो डर लगता है. छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा होते जाएगा. Okay, Byju's case studies, please. Yes. How to cope with parents' expectation even if you are trying hard but not getting the desired success? विशाल, ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम है. आप आपके पिताजी के साथ ऑनेस्टली बात करिए और उनको धोखा मत दीजिए. आप बताइए कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या क्या कर रहे हो. मैंने देखा आजकल स्टूडेंट्स मोबाइल पे बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, रात में 2-2, 3-3 बजे तक करते, सुबह उनकी नींद नहीं खुलती है. एंड दिस सर्कल हैपन्स. रात के अंदर गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं. दिस इज नॉट द एज. ओके, यू टू फोकस ऑन द थिंग्स. मोबाइल जैसा पॉइजन अवेलेबल आज कोई भी नहीं है. ओके, हाउ टू कंट्रोल एंगर? प्रगति देशमुख, मैं आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो बताता हूं. एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर.
एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। आपको पता रहना चाहिए कि एंगर को किस तरह से हम ऊपर ला सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लिंक चाहिए यहां पर पूरी मिल जाएगी, पूरी की पूरी लिंक आपको यहां मिल जाएगी, हाउ टू ओवरकम एंगर। Okay, you told just not to get negative. Okay, sir, please reply. Which questions, sir? When I get negative, what to do? Oh, you told that I told just to not get negative. Okay, see, हमारा माइंड बड़ा डिफिकल्ट चीज है। अगर मैं बोलूंगा आपको इस समय वाटरमेलन के बारे में नहीं सोचना है, तो आप सबसे पहले वाटरमेलन के बारे में सोचोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव मत सोचो, तो आप नेगेटिव सोचोगे। नेगेटिव नहीं सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। यस, क्योंकि माइंड में वैक्यूम नहीं रह सकता। मैं बोलूंगा नेगेटिव मत सोचे, तो आप पूछेंगे फिर मैं क्या करूं? अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम आने वाला, मैं फेल हो जाऊंगा, अरे बाबा फेल क्यों होगा? तूने मेहनत करी है, तूने अच्छे से पढ़ाई करी है, तेरे को क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, तूने सर से जाके डाउट क्लियर कर लिया है, यू डिड एवरीथिंग व्हाट इज सपोज टू डू। तो इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आती है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किससे दूर होता है? कॉन्शियस पॉजिटिव थिंक के साथ। किस तरह से नेगेटिव चीजों को उड़ाना है? आपको थॉट विजिलेंट बनना पड़ेगा। थॉट विजिलेंट क्या होता है पता है आपको? कि जैसे भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आ रहा है, उसको फुक करके हटाना। बोले नहीं, मेरे को अभी इस बारे में नहीं सोचना है, मेरे को इस बारे में अभी नहीं सोचना है। How to focus on your dream, how to remain persistent in life. There are a few important questions Yes. which I think they should be addressed. Look, the questions are going just like the stock market thing. I cannot keep an eye. How to overcome the fear of stage daring? Stage daring, right? See, you have to be a public speaker. You have to be a public speaker, and you have to prepare yourself to come out of this. चेतन जी, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, कौन बात कर रहे थे अभी? Yes sir, चेतन चौहान जी। चेतन जी, हम एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक अलग सेशन बाद में ले सकते हैं। आई थिंक दैट विल हेल्प, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रेजेंटेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई मूवमेंट्स, योर वॉल्यूम ऑफ योर थिंग्स, देयर आर डिफरेंट थिंग्स कम्स अप। ओके, so we won't have time to cover that up, and it's not something very difficult. We can do it in very 5 or 10 minutes. Okay sir, thank you. Okay, but I'm very much happy. एक बात जरूर बोलूंगा, I love this crowd. इतना अच्छा crowd मैंने कई सालों बाद देखा है। So much energy, so much filled with positivity. Audio is not clear. मेरा echo आ रहा है क्या? किधर शायद आप म्यूट कर दीजिए। Okay, see, I'm very happy and impressed because of you guys. Guys, if you want, I'm happy to come once again and we can cover different topics and we will do it in a very positive way. So there are 340 students. I'm so happy that people are getting chance to do this. I just want to tell you, look, there are so many things. You watch this video. This is a wonderful video. और आपके मन में अगर नेगेटिव आता है ना, तो मैंने ये बहुत ही बढ़िया एक कोटेशन वाला बनाया था। Okay, please watch these videos, please. How to feel happy always? Reply, sir. See, happiness is not any stupid thing, you know. You have to be very focused. आप डिसीजन ले सकते हो किस तरह से आपको हैप्पी रहना है। ओके, तो आप बिल्कुल करिए, उससे बहुत आपको फायदा होगा। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर गेटिंग चांस टू टेक अवर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल एंड यू आर अमेजिंग क्राउड. One day, if I'm in Aurangabad, I will definitely try to visit you guys because you are such a wonderful crowd. You are such a wonderful crowd. मुझे बहुत अच्छा लगा। Friends, आपको ये सेशन कैसा लगा? Can you please tell me quickly any input? आपको बोर तो नहीं हुआ इसके अंदर? Did you enjoy the talk? Amazing. Thank you very much. So very nice.
Wow, very nice. Looks like people are very happy. So I'm very happy to see you guys happy. And that is the very important secret that we have to do this. Okay. And if you want, we can visit my website. My website is Anand will say that's the wrong thing. You just visit my website. There is so much important information which you can do and learn, and so much amazing thing. And if you are preparing for jobs already, I just want to tell you this is a very important way to learn. Guys, if you're looking for how to prepare for a job from early part of your life, how to okay, have fear of night ghost. Who do we get rid to? It makes me negative. Okay, see, you should bring some spirituality in your life, Arya. That will help you to improve how to get the things done. Okay, so make sure that you can start to get all the things in your life. You should, because once you get some stupid negative thoughts like ghost or anything, it is because of your lower level of consciousness. You have to take one step up to start to get the things done. Okay. Look, the questions are still going on, so that's very nice. While studying, the brain goes in a wrong way. That is negativity. What to do, sir? You tell me all things, those much help on the way to journey. Very nice. Thank you very much. So I think we are done. Any more things? मैं चाहूंगा कि दोबारा भी जब भी आपको ऐसा मौका मिले, I will be very happy to come and talk to you guys and discuss the important things. Okay. Satyajit, anything else? Okay, sir. Thank you, sir. Vaidehi, are you there? Yes, I am here. Look, I'm getting questions. Whether I'm getting so many questions, it keeps going so quickly that I cannot really answer that question. I think we can plan one more session depending on your schedule and other things. So later on maybe, and we can work on these things. Sure, sir. We would be glad to have you again. Thank you very much. And guys, if you love the session, please like my video channel or send me a note, whatever you feel like. That will be wonderful. Thank you very much. So we come to the end of the session now. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event. I would like to thank our chief guest who honored this function with his inspirational and motivational thoughts. I would like to thank PD Club alumni and members for assisting in conducting this induction program, to Principal Sir and Dean of our college who were not able to attend this session. And last but not the least, to the freshers who showed such enthusiasm during entire session and for being so interactive. Because of you all, this event was a grand success. Thank you once again. I just want to talk about Yash Patil, and he has got this question: how to start a college with a positive attitude. See, college is all about coming out of the schooling and trying to do something best. So here the attitude should be of a learner, as a helper, as someone who can work hard, someone who wants to add value to the life of others. If you are into that mind frame, you are doing it wonderful. Have quality friends, be a disciplined life, and work, focus. All right, Yash, thank you very much. Please look after yourself. I wish you all the very best in your life. May God bless you all. You go to the next level. आप खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब शांति कमाओ,
ये मेरी भगवान से आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। सत्यजीत, आर वी डन? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. So may I leave now? Yes, sir. Okay. Yes. Thank you. Thank you, Vaidehi. Welcome.